Good morning, student. This is your next topic of chapter 4, measures to correct deficient and excess demand. In the previous video, we have learned about what is deficient demand and excess demand. Now, in this PDF, we will come to know what measures should be taken to correct deficient and excess demand. So let's see the introduction first. Deficit demand and excess demand generate deflationary and inflationary tendencies respectively in the economy, which give birth to trade cycle in the economy. We have also discussed in our previous video what is trade cycle and what are the process involved in this trade cycle. So now come to the measures to correct deficient demand. So it is broadly divided into three measures. First is fiscal measure, then monetary measures and other measures. Let's discuss fiscal measures first. So it is a policy concerning the revenue expenditure and debt of the government for achieving definite objectives. फिस्कल मेजर्स में जनरली बात की जाती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स की. अब इसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर. Public expenditure is the expenditure made by the government is called public expenditures. और जब भी कभी इकॉनमी में डेफिसिट डिमांड हो तो इस सिचुएशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देना चाहिए. नेक्स्ट इज टैक्सेशन. टैक्सेशन इज tax is such a compulsory payment to the government in return of which taxpayer does not expect any direct benefit from the government. Generally it is of two types, direct and indirect taxes. Direct taxes are those taxes which are laid on income property of the person. The burden of these taxes is borne by the other person on whom these are levied. Income tax, gift tax, wealth tax are some example of direct expenses. And indirect taxes are those taxes which are indirectly paid. The burden of these taxes may be transferred to other persons. Sales tax, excise duty, custom duty, etc. are example of indirect taxes. Now for correcting deficit demand, government should cut down the direct taxes like income tax, corporation tax, etc. The tax reduction will leave more purchasing power with households and the public will be induced to increase consumption and promote investment. Consequently, aggregate demand in the economy will increase, which will correct the deficiency of the demand. Now, in situation of deflationary, और आप ये भी कह सकते हो कि अगर जब कभी भी deficit demand हो, deficit demand means when your demands are स्मॉलर देन योर एग्रीगेट सप्लाई. तो इस सिचुएशन में टैक्स अगर आप रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट तो उससे क्या है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिससे कि डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है. नेक्स्ट इज पब्लिक डेब्ट. सिमिलरली जैसे टैक्सेशन गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे तो आपकी डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है. सिमिलरली जो पब्लिक डेब्ट्स है वो भी रिड्यूस कर देने चाहिए. नाउ व्हाट इज पब्लिक डेब्ट्स? जितना भी इट रेफर्स टू द डेब्ट और लोन बोरोड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक. तो गवर्नमेंट के ऊपर जो लोन होता है दैट इज अ पब्लिक डेब्ट. एंड उसको रिड्यूस करने से क्या होगा, it increases the quantity of money in circulation and people have more purchasing power in their hands. Consequently, aggregate demand will increase. Next is deficit financing. Deficit financing में budget of big deficit. अब deficit financing क्या होता है या deficit budget क्या होता है? So in such budget, public expenditure exceeds public revenue. डेफिसिट बजट किसे कहते हैं? जहाँ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, जो पब्लिक के खर्चे हैं वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू पब्लिक रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू पब्लिक. तो ऐसे बजट को डेफिसिट बजट कहते हैं. द बजट डेफिसिट इज कवर्ड बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई विच फर्दर इंक्रीजेज परचेसिंग पावर विद द पब्लिक एंड एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी. और बजट डेफिसिट को कवर कैसे किया जाएगा? मनी सप्लाई को बढ़ाकर. जैसे ही हम मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे अगेन पैसा पब्लिक के हैंड में आएगा, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन भी रिकवर होगी. सो हेंस
deficit budget becomes an important instrument for correcting deficit demand. तो कहीं ना कहीं डेफिसिट बजट डेफिसिट डिमांड पे कहीं ना कहीं उसका असर डायरेक्टली पड़ता है. Now these all were the fiscal measures. Now come to the next measures, monetary measures. Now measures related to monetary policy are termed as monetary measures. बेसिकली वो पॉलिसीज़ जिनमें मनी रिलेटेड पॉलिसीज़ की बात की जाए हो या फिर मनी रिलेटेड मेजरमेंट्स लिए गए हों उनको कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स. और ये कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. इंडिया में आरबीआई को राइट है कि वो एक पॉलिसी कंट्रोल्स करे. नाउ जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है किन एलिमेंट्स को देखते हुए? सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. So it is broadly divided into two parts, quantitative measurements and qualitative measurements, which we have discussed earlier in your banking chapter also. So first is quantitative monetary measures or quantitative credit control. These measures refers to those controls by which supply of credit in the economy is controlled. Central bank applies the following measures for controlling the quantity of credit. Number one is bank rate. The bank rate is the rate at which the central bank gives loan or credit to the commercial bank. बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को. ठीक है, तो उस रेट को डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में हम उस रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे. तो अगर बैंक रेट डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हो तो हम बैंक रेट को रिड्यूस करेंगे. बैंक रेट को रिड्यूस करने के वजह से क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा जिससे वो लोगों को, पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा. और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या है? जब लोगों के पास पैसा कम है तो इसके ज़रिए पब्लिक के पास पैसा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और अगेन ये जो डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो कम हो सकती है. Next is open market operations. Now open market operation is purchasing and selling of shares, bonds, securities in the open market by the central bank. तो अगर सिचुएशन डेफिसिट डिमांड की है तो इस कंडीशन में ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या किया जाएगा? परचेज या सेल में से परचेज किया जाएगा. अगर मार्केट से बैंकर परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स तो उसके बदले कैश उन्हें वापस वहाँ मार्केट में देना पड़ेगा. और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन ही क्या है कि किसी तरीके से मार्केट में पैसा पहुँचाया जा सके ताकि वहाँ पे डिमांड, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सके. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ है इस सिचुएशन में, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में परचेज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज change in cash reserve ratio. Now what is cash reserve ratio? Every commercial bank has to deposit a fixed percentage of its total deposit with the central bank. This percentage or ratio is termed as cash reserve ratio. और इस दौरान कैश रिजर्व रेशो को घटा दिया जाता है. कौन सी सिचुएशन में? डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में. क्यों घटा दिया जाता है? क्योंकि सीआरआर डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक, अब वो रिड्यूस कर देगा तो नॉट कमर्शियल, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. और जैसे ही सेंट्रल बैंक सीआरआर रेशो को कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक को अपना डिपॉजिट कम पे करना पड़ेगा. उनके पास मनी रहेगा तो वो पब्लिक हैंड में आगे ट्रांसफ़र कर सकता है थ्रू सिमिलर प्रोसेस. अगर पब्लिक के हैंड में मनी हो, मनी सप्लाई हो, जैसे ही पब्लिक के हैंड में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी जिससे कि जो डिमांड डेफिसिट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी. लास्ट वन इज लिक्विडिटी रेशो. लिक्विडिटी रेशो इज ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. इट इज़ दैट रेशो every commercial bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of cash or other liquid assets, and this percentage or ratio is known as liquidity ratio. Now in the situation of deficit demand, we have to reduce this liquidity ratio as central banks attempt for more credit creation in the situation of deficit demand. Similarly, जैसे कैश रिजर्व रेशो रिड्यूस करने से जो मनी सप्लाई है मार्केट में इंक्रीज़ होता है, वैसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को
रिड्यूस करने से भी मनी सप्लाई मार्केट में, इकॉनमी में इंक्रीज होगा, और मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होने से डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. Now we will discuss qualitative monetary measures and other measures in your next video. That's all for today. Thank you.